Rahim. Assalamu alaikum students. How are you? I am fine by the grace of Almighty Allah. I hope that you will also be fine. I am Muhammad Hussain, your mathematics teacher. Welcome you in DPS digital class. Let us start today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are doing chapter number 12 of first year mathematics, which is about application of trigonometry. In today's lecture, we will complete exercise 12.8 and exercise 13.1. Before we start our lecture, we first revise some important formulas which will be used in exercise 12.8. First of all, we revise half angle formulas. Sin alpha over 2 is equal to square root of s minus b into s minus c over bc. Sin beta over 2 is equal to square root of s minus a into s minus c over ac, and sin gamma over 2 is equal to square root of s minus a into s minus b over ab. Similarly, cos alpha over 2 is equal to square root of s into s minus a over bc. Cos beta over 2 is equal to square root of s into s minus b over ac, and cos gamma over 2 is equal to square root of s into s minus c over ab. Similarly, tan alpha over 2, which is equal to sin alpha over 2 divided by cos alpha over 2, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो tan alpha over 2 will be equal to square root of s minus b into s minus c over s into s minus a. Similarly, tan beta over 2 is equal to square root of s minus a into s minus c over s into s minus b, and tan gamma over 2 is equal to square root of s minus a into s minus b over s into s minus c. Some further important formulas are capital R, which is circumradius. R is equal to a over 2 sin alpha is equal to b over 2 sin beta is equal to c over 2 sin gamma. Also, circumradius capital R is equal to abc over 4 delta. Moreover, in radius, small r is equal to delta over s, and ascribe radius r1 is equal to delta over s minus a, r2 is equal to delta over s minus b, and r3 is equal to delta over s minus c. Area of triangle is equal to 1 over 2 AB into sin gamma. Also, it is equal to 1 over 2 BC sin alpha and 1 over 2 AC sin beta. And area of triangle delta is equal to square root of s into s minus a into s minus b into s minus c, which is also called Hero's formula. ये तमाम formulas हमने याद कर लेने हैं ताकि हम questions को आसानी के साथ solve कर सकें. Now we start exercise 12.8. We solve its question number 1, part number 2. Show that small s is equal to 4 into capital R cosine alpha over 2 into cosine beta over 2 into cosine gamma over 2. आपने इसमें कैपिटल R की और ये कोसाइन हाफ एंगल फार्मूलाज की वैल्यूज को पुट कर देने हैं जो अभी हमने पिछली स्लाइड में लर्न किए थे. टेकिंग राइट हैंड साइड, putting the values in place of r, we put abc over 4 delta. Cos alpha over 2 की जगह पे हमने square root of s into s minus a over bc पुट किया. Cos beta over 2 की जगह पे हमने s into s minus b over ac square root पुट किया, and cos gamma over 2 की जगह पे हमने square root of s into s minus c over ab हमने पुट किया. This 4 be cancelled by this one. We get abc over delta. इन सब को हमने a की स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और ये s इंटू एस एस स्क्वायर ओवर a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी बी स्क्वायर, एंड c इंटू सी सी स्क्वायर, ये आ जाता है.
इज इक्वल टू ए बी सी ओवर डेल्टा, ये एस स्केयर का स्केयर रूट लिया तो ये स्केयर रूट से बाहर आ गया, एस इंटू स्केयर रूट में आ गया एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर ये ए स्केयर बी स्केयर स्केयर इनके स्केयर्स हैं, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, इनका जब स्केयर रूट लिया जाएगा तो ये ए बी सी आ जाएगा। दिस ए बी सी विल बी कैंसल्ड बाय दिस ए बी सी। ये स्केयर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल है, डेल्टा के इक्वल आ जाएगा। ये ए बी सी से कट गया। We get Hero's formula delta is equal to square root of s into s minus a into s minus b into s minus c। इसकी जगह पे हमने डेल्टा लिख दिया, s into डेल्टा ओवर डेल्टा, ये डेल्टा डेल्टा से कट गया, दिस इज इक्वल टू s and this is equal to left hand side। Now we solve question number 3 part number 2। Show that small r2 is equal to 4 into capital R cos alpha over 2 into sin beta over 2 into cos gamma over 2। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। टेकिंग राइट हैंड साइड इज 4 into capital R cos alpha over 2 sin beta over 2 into cos gamma over 2। इसमें हमने कैपिटल R की वैल्यू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा और cos alpha over 2 sin beta over 2 cos gamma over 2 की वैल्यूज पुट कर देनी है। आर की जगह पे हमने लिखा ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, कॉस अल्फा ओवर 2 की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, साइन बीटा ओवर 2 की जगह पे इसकी वैल्यू साइन बीटा ओवर 2 होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर ए सी, एंड कॉस गैमा ओवर 2 ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। 4 से कैंसिल हो जाएगा और इन सब को हम ए की स्क्वायर रूट के नीचे ले जाएं, ए बी सी ओवर डेल्टा एस इंटू एस माइनस ए, फिर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी एंड एस इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी ए सी और ए बी। ए की स्क्वायर रूट के अंदर हमने इसको ले लिया तो एस इंटू एस एस स्क्वायर एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए, ये एस माइनस ए का स्क्वायर हो गया, एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी, ये एस माइनस सी होल स्क्वायर हो गया। नीचे भी इसी तरह से a इंटू ए स्केयर, b इंटू बी स्केयर और c इंटू सी स्केयर और ये होल स्केयर, ये सब के ऊपर स्केयर्स हैं और इनका स्केयर रूट भी है तो स्केयर्स एंड स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा बगैर स्केयर रूट के ए बी सी ओवर डेल्टा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी सी। अब इसमें हीरोज फार्मूला के मुताबिक ये होना चाहिए s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसमें s माइनस बी मिसिंग है तो हम क्या करते हैं, इसको s माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और s माइनस बी से ही हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ये ए बी सी से कैंसिल हो गया तो ऊपर ये आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर डेल्टा इंटू एस माइनस बी। अब ये अगर स्क्वायर रूट होता तो ये डेल्टा के इक्वल होना था, अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है इसलिए ये डेल्टा स्क्वायर के इक्वल आ गया हीरोज फार्मूला के मुताबिक। नीचे ये डेल्टा इंटू एस माइनस बी है, एक डेल्टा इससे कट जाता है तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस बी और डेल्टा ओवर एस माइनस बी ये R2 के इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2। प्रूव दैट स्मॉल r इंटू r1 इंटू r2 इंटू r3 इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड r इंटू r1 इंटू r2 इंटू r3। अब इसमें इन सब की वैल्यूज पुट कर देते हैं। स्मॉल r होता है डेल्टा ओवर s, r1 होता है डेल्टा ओवर s माइनस a, r2 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s माइनस b एंड r3 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s माइनस c। इन सब को ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वालों को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 टाइम डेल्टा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा डेल्टा 4। नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और ये हीरोज फार्मूला के मुताबिक ये डेल्टा स्केयर के इक्वल है तो ये ऊपर पावर 4 है नीचे स्केयर है तो ये पावर माइनस हो जाएंगी 4 माइनस 2 तो ये डेल्टा की पावर 2 आ गई। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ वी सॉल्व पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट r1 into r2 into r3 is equal to rs square।
टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड R1 इंटू R2 इंटू R3, R1 की जगह पे हमने पुट किया डेल्टा ओवर S माइनस ए, R2 की वैल्यू होती है डेल्टा ओवर S माइनस बी एंड R3 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस सी। इसमें हमने न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 3 टाइम डेल्टा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डेल्टा क्यूब आ जाएगा, नीचे S माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसको S से मल्टीप्लाई कर दिया और S से ही डिवाइड कर दिया ताकि ये नीचे डिनोमिनेटर में हम हीरोज फार्मूला अप्लाई कर सकें। ऊपर ये आयत है S इंटू डेल्टा क्यूब और नीचे S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, S इंटू डेल्टा क्यूब ओवर डेल्टा स्केयर हीरोज फार्मूला के मुताबिक नीचे डिनोमिनेटर में ये डेल्टा स्केयर होगा। तो ऊपर है डेल्टा क्यूब, नीचे डेल्टा स्केयर, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है डिवीजन में। डेल्टा क्यूब -2 करेंगे तो ये डेल्टा आ जाएगा S इंटू डेल्टा। अब इसको S से मल्टीप्लाई कर दिया और S से ही हमने डिवाइड कर दिया, तो ये डेल्टा ओवर S इंटू एस स्केयर, डेल्टा ओवर S होता है स्मॉल r, स्मॉल r इंटू एस स्केयर, यही राइट हैंड साइड है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Now we solve part number 2 of question number 6. Find capital R, small r, R1, R2 and R3 if measures of the sides of the triangle ABC are small a is equal to 34, small b is equal to 20 and small c is equal to 42. First of all we find S is equal to a plus b plus c over 2 के इक्वल होता है। इसमें आपने a, b और c की वैल्यूज पुट कर देनी है। a की जगह पे 34 लिखा, b की जगह पे 20 और c की जगह पे 42, डिवाइड बाई 2, इन सब का सम किया तो 96 आता है। 96 को 2 पे डिवाइड किया तो ये 48 आ गया। नाउ वी फाइंड s माइनस a, 48 माइनस 34 इज इक्वल टू 14 होता है। s माइनस b इज इक्वल टू 48 माइनस 20 इज इक्वल टू 28, s माइनस c इज इक्वल टू 48 माइनस 42 is equal to 6. Using Hero's formula, we find the area of the triangle. Delta is equal to square root of S into S minus A into S minus B into S minus C. आप इसमें S minus A, S minus B और S minus C की वैल्यूज पुट कर दें। S की वैल्यू है 48, S minus A की वैल्यू है 14 और S minus B की वैल्यू है 28 और S minus C की वैल्यू है 6। इन सब को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 112896। इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये 336 आ गया, तो डेल्टा की वैल्यू आ गई 336। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल R, कैपिटल R होता है ABC ओवर 4 डेल्टा के इक्वल। इसमें A की वैल्यू 34 हमने पुट की, B की वैल्यू है 20 और C की वैल्यू 42, डिवाइड बाई 4 इंटू डेल्टा की वैल्यू हम अभी हमने कैलकुलेट की है वो है 336। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 28560 और नीचे डिनोमिनेटर वालों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1344। इसको डिवाइड किया तो कैपिटल R की वैल्यू आ गई 21.25। नाउ वी फाइंड स्मॉल r, स्मॉल r की वैल्यू होती है डेल्टा और S। डेल्टा की वैल्यू है 336 और S हमने कैलकुलेट किया हुआ 48। इसको डिवाइड किया तो स्मॉल r की वैल्यू आ गई 7। स्मॉल r1 की वैल्यू होती है डेल्टा और S माइनस ए, डेल्टा की वैल्यू 336, S माइनस ए 14 होता है, इसको डिवाइड किया तो 24 आ गया। R2 इज इक्वल टू डेल्टा और S माइनस बी, S माइनस बी की वैल्यू 28 है, डेल्टा की वैल्यू 336 है, तो इसको डिवाइड किया तो R2 की वैल्यू 12 आ जाती है। सिमिलरली R3 की वैल्यू होती है डेल्टा और S माइनस सी, डेल्टा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है 336 और इसको 6 पे डिवाइड किया तो R3 आ गया 56। Now we solve part number 2 of question number 7, very important question. Prove that in an equilateral triangle small r ratio capital R ratio small r1 ratio r2 ratio r3 is equal to 1 ratio 2 ratio 3 ratio 3 ratio 3। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज a, देन a b c ये तीनों इक्वल होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल होने की वजह से हम b की जगह पे भी इसमें a पुट कर देते हैं और c की जगह पे भी a पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होता है। चूंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसमें हम b की जगह पे भी a पुट कर रहे हैं और c की जगह पे भी a पुट कर रहे हैं।
एस की वैल्यू आ जाती है 3a/2। अब इसमें s माइनस ए हो या s माइनस बी हो या s माइनस सी हो, तीनों की सेम वैल्यू होगी। s की जगह पे हमने 3a/2 पुट किया और माइनस a इसमें से किया, 2 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 3a माइनस 2a/2 इज इक्वल टू a/2। तो इन तीनों की वैल्यूज s माइनस ए की वैल्यू भी a/2 है और s माइनस बी की वैल्यू भी a/2 है और s माइनस सी की वैल्यू भी a/2 है। अब हम हीरोज फार्मूला यूज करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए। आगे s माइनस बी है वो भी s माइनस ए बन जाएगा और s माइनस सी वो भी s माइनस ए बन जाएगा, क्योंकि b और c इसमें a के इक्वल हमने लिए हुए हैं। अब इन चारों की वैल्यूज हमने पुट कर देनी है। s की जगह पे हमने पुट किया 3a/2, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी की जगह पे हमने a/2 पुट कर दिया। तो ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वालों को नीचे वालों से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3a/4/16। तो 3 का स्क्वायर रूट ले लिया, a4 का स्क्वायर रूट लिया तो a स्क्वायर आ गया और 16 का स्क्वायर रूट लिया तो 4 आ गया। नो r स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s होता है, तो डेल्टा की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3a² / 4 डिवाइड बाई s की वैल्यू है 3a/2। तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 2/3a आ जाएगा। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू a/2 इंटू 3 को हमने लिख दिया 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट, तो ये एक 3 स्क्वायर रूट इससे कट गया, तो r की वैल्यू आ गई a/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हम कैपिटल R फाइंड करते हैं, कैपिटल R इसकी वैल्यू होती है ABC/4 डेल्टा। अब इसमें B और C भी चूंकि हमने A के इक्वल लिया हुआ है तो ये आ जाएगा a/4 डेल्टा की ये वैल्यू हमने निकाली हुई है स्क्वायर रूट ऑफ 3a²/4। ये 4 से कैंसिल हो जाता है, ऊपर a3 है नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू a² है, तो इनको सिंप्लीफाई किया तो कैपिटल R की वैल्यू आ गई a/√3। नाउ वी फाइंड R1 की वैल्यू होती है डेल्टा ओवर s माइनस ए। डेल्टा हमने कैलकुलेट किया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू a²/4 डिवाइडेड बाई s माइनस ए की वैल्यू है a/2। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो R1 की वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू a/2। R2 की भी यही वैल्यू आएगी और R3 की भी यही वैल्यू होगी। नाउ वी टेक राइट लेफ्ट हैंड साइड, R रेशो कैपिटल R रेशो R1 रेशो R2 रेशो R3। इसमें हमने स्मॉल r की वैल्यू पुट कर दी जो ऊपर हमने ये कैलकुलेट की है a/2 इंटू 3 स्क्वायर रूट। इसमें कैपिटल R की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है a/स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेशो। इसी तरह से हमने R1 की और R2 की और R3 की वैल्यू जो कि सेम है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू a/2, ये हमने R1 R2 और R3 की जगह पे हमने पुट कर दी है। तो ये आगे अब इसको राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई करने के लिए हमने क्या करना है कि इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ये नीचे आ जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा, इसके रेसिप्रोकल से इस सब को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, इसी तरह ये भी 3 आ जाएगा और ये भी 3 आ जाएगा और यही हमने प्रूव करना था। Now we solve question number 11. Prove that ABC into sin alpha plus sin beta plus sin gamma is equal to 4 into delta into S. एरिया ऑफ द ट्राइंगल हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 BC sin अल्फा। यहां से हम sin अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, sin अल्फा विल बी इक्वल टू 2 into delta over BC. Similarly, area of triangle is also equal to 1/2 AC sin beta. यहाँ से हम sin बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं 2 delta over AC and area of triangle delta is equal to 1/2 AB sin gamma. Sin gamma is equal to 2 delta over AB. अब इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड में sin अल्फा sin बीटा और sin gamma की ये वैल्यूज पुट कर देनी है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ABC इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा, इसमें साइन अल्फा की जगह पे 2 डेल्टा और BC पुट किया, साइन बीटा की जगह पे 2 डेल्टा और AC और साइन गैमा की जगह पे 2 डेल्टा और AB हमने पुट कर दिया। ऊपर से ये 2 डेल्टा हमने कॉमन ले लिया, 2 डेल्टा इंटू 1/BC प्लस 1/AC और प्लस 1/AB रह गया।
अब इसमें ब्रैकेट के अंदर हमने ये एलसीएम ले लिया, ए बी सी एलसीएम लिया, इधर नीचे डिनोमिनेटर में बी सी है तो एलसीएम को बी सी से भी डिवाइड करेंगे तो ए बचेगा, ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए। सिमिलरली ये प्लस बी और ये प्लस सी आ जाता है, ये ए बी सी से कट जाता है तो 2 डेल्टा इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें ए प्लस बी प्लस सी ये 2s के इक्वल होता है, चूंकि s जो होता है वो a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 होता है, तो 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2s विल बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इसकी जगह पे हमने 2s लिख दिया तो ये आ जाता है 4 इंटू डेल्टा इंटू एस, यही राइट हैंड साइड है। नाउ वी सॉल्व पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। Prove that R3 minus R into cotangent gamma over 2 is equal to C. Taking left hand side में है R3 minus R ब्रैकेट में into cotangent gamma over 2। इसमें आपने इन तीनों की वैल्यूज पुट कर देनी है। R3 की वैल्यू है डेल्टा ओवर S माइनस सी, R की वैल्यू है डेल्टा ओवर S, और कोटेंजेंट गैमा ओवर 2 ये होगा रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट गैमा ओवर 2। तो टेंजेंट गैमा ओवर 2 का नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। टेंजेंट गैमा ओवर 2 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस सी ओवर s माइनस ए इंटू एस माइनस बी। इसमें से डेल्टा कॉमन ले लिया ब्रैकेट से, 1 ओवर s माइनस सी माइनस 1 ओवर s। ये एलसीएम ले लिया ब्रैकेट के अंदर s इंटू एस माइनस सी, तो ये आता है s माइनस ब्रैकेट में s माइनस सी, तो ये आता है s माइनस एस प्लस सी। ये माइनस एस प्लस एस से कैंसिल हो गया, ये सी बचा सी इंटू डेल्टा, और इधर हमने क्या किया स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस सी, और इधर आई एस इंटू एस माइनस सी, और ये स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी, और स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। ये ऊपर था स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी, और नीचे ये है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और इधर है एस इंटू एस माइनस सी। ये इसकी पावर सिंगल है तो इसको हमने 2 दफा लिख दिया, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दिया हमने। ये s इंटू एस माइनस सी था, इसके ऊपर हमने 2 दफा लिख दिया, इसको स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी डाल दिया और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डाल दिया, तो एक स्क्वायर रूट इससे कट जाएगा, इधर से ये s माइनस एस कट गया तो डेल्टा सी, ये ऊपर s स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस सी इससे कट गया, तो नीचे ये आ गया s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जो कि डेल्टा के इक्वल होता है। तो ये डेल्टा डेल्टा से कट गया तो ये c के इक्वल आ गया। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Now we start chapter number 13, which is inverse trigonometric functions. The inverse of a function exists only if it is one-to-one function. सिर्फ उसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जो कि 1-to-1 होता है। All trigonometric functions are not 1-to-1 functions. तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो 1-to-1 नहीं होते, क्योंकि इनका ये पीरियड्स होता है, ये पीरियड्स में अपनी वैल्यू को रिपीट करते रहते हैं। मसलन अगर cos 60 की वैल्यू 1/2 है तो 60 में अगर हम 360 प्लस कर दें जो कि पीरियड होता है इसका cos का, तो जो आंसर आएगा उसकी भी वैल्यू 1/2 ही होगी। इस तरह से ये 1-to-1 नहीं होता। 1-to-1 वो होता है जो एक सिंगल वैल्यू के ऊपर जिसकी सिंगल वैल्यू आए। However, they can be made 1-to-1 by restricting their domains. अगर हम इनके डोमेन के ऊपर कुछ पाबंदी लगा दें तो फिर ये 1-to-1 functions हो सकते हैं। तो these trigonometric functions which with restricted domains are called principal trigonometric functions. तो जब हम उनके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो फिर इनको प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहा जाता है। मिसाल के तौर पे द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। साइन का जो डोमेन होता है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है और रेंज इसका होता है -1/1। अगर हम इस डोमेन के साथ इसका इनवर्स लेना चाहें तो वो फंक्शन नहीं होगा। इट इज नॉट ए 1-to-1 फंक्शन, इसका इसलिए इसका इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है डोमेन इस डोमेन के साथ, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के साथ, इसलिए इसका हम इनवर्स जो है ना वो लेंगे तो वो फंक्शन नहीं बनेगा। सो इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट।
बट इफ वी रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन टू द इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, यानी माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक, ये बनता है फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके अंदर हम इसको लें फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर हम ये एंगल लें इसका, तो उस सूरत में ये 1 to 1 फंक्शन होगा और फिर इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इसलिए इसके डोमेन को हमने सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से इस इंटरवल तक महदूद कर दिया है, तो फिर हम इसको प्रिंसिपल साइन फंक्शन का नाम देंगे और इसको कैपिटल एस से लिखेंगे। अगर ये कैपिटल एस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसका ये वाला डोमेन है माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू इंटरवल, क्लोज इंटरवल इसको कहते हैं। अगर स्मॉल एस है तो इसका डोमेन होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सो y इज इक्वल टू कैपिटल एस के साथ sin x is 1 to 1 function and its inverse exists. Similarly, domain of principal tangent function का भी यही डोमेन होता है जो कि sin का है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक। और डोमेन ऑफ प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन ये 0 से लेकर पाई तक होता है, यानी ये पहला और दूसरा क्वाड्रेंट बनता है 0 से लेकर पाई तक। आपने इनके ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो है ना ये याद कर लेने हैं, ये आगे क्वेश्चंस में हमारी हेल्प करेंगे। First of all, we solve example number 2 on page number 390. Find the value of cos inverse of 1 and cos inverse of minus 1 over 2. We want to find the angle y whose cosine is 1. पहला पार्ट अगर हम कंसिडर करें cos inverse 1 का मतलब ये है कि हमने वो एंगल फाइंड करना है जिसका कोसाइन लें तो वो 1 के इक्वल आए। तो हम इसको लेट कर लेते हैं y, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 इम्प्लाइज cos को इनवर्स को इधर लेके गया तो ये cos बन गया, cos y इज इक्वल टू 1। अब ये cos का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होता है 0 से लेकर पाई तक, y इज लेस देन इक्वल देन पाई और ग्रेटर देन इक्वल देन 0। इस इंटरवल में हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर cos जो है वो 1 होता है। तो cos 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है, इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू 0 आ जाती है। Therefore, cos inverse 1 is equal to 0. ये भी y है, y is equal to cos inverse 1 और ये भी y है, y is equal to 0। इन दोनों को इक्वेट कर दिया, therefore cos inverse 1 is equal to 0। सेकंड पार्ट हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे we want to find the angle y whose cosine is minus 1 over 2। हमने वो एंगल फाइंड करना है जिसकी कोसाइन पे वैल्यू लें तो वो माइनस 1 over 2 आए। हमने लेट कर लेना है, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1 over 2, इसको उधर ले गए cos y इज इक्वल टू माइनस 1 over 2। अब इसमें y का जो डोमेन है वो 0 से लेकर पाई तक है। ऐसा कौन सा एंगल है जो 0 से लेकर पाई तक हो और उसकी वैल्यू हो माइनस 1 over 2? तो cos 2 पाई ओवर 3 यानी कि cos 120 के ऊपर माइनस 1 over 2 वैल्यू होती है। 120 होता है 2 पाई ओवर 3, cos 2 पाई ओवर 3 इसकी वैल्यू होती है माइनस 1 over 2। यानी कि इन दोनों को कंपेयर करें तो y की वैल्यू आती है 2 पाई ओवर 3 या 120 डिग्री। y की वैल्यू 2 पाई ओवर 3 और y हमने ये लेट किया y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ माइनस 1 over 2। इन दोनों को इक्वेट कर लिया तो cos इनवर्स ऑफ माइनस 1 over 2 इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 3। ये भी y के इक्वल है और ये भी y के इक्वल है, इसलिए ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। Now we solve question number 1 of exercise 13.1। इसका हम पार्ट नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। cos find evaluate using without using tables और कैलकुलेटर। हमने ये बगैर टेबल के या कैलकुलेटर की इसकी वैल्यू जो है ना फाइंड करनी है। तो पहले हम लेट करते हैं y इज इक्वल टू cos इनवर्स 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, cos y विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। इसको नंबर 1 इक्वेशन कह दिया। इसमें y का जो डोमेन है वो 0 से लेकर पाई तक है। अब हमने देखना है कि किस एंगल पे cos की वैल्यू जो है वो 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 होती है। तो cos 30 डिग्री जो होता है वो 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 होता है। 30 डिग्री को रेडियन में लिखें तो पाई ओवर 6 बनता है। तो cos पाई ओवर 6 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। इन दोनों को इक्वेट किया तो y की वैल्यू आ गई पाई ओवर 6। तो ये y हमने लिया है cos इनवर्स 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 और ये y की वैल्यू पाई ओवर 6। इन दोनों को हम इक्वल लिख देते हैं। cos इनवर्स 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 इज इक्वल टू पाई ओवर 6। Next we consider part number 4 of question number 1,
tan इनवर्स ऑफ -1/3 स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसको हमने लेट कर लिया y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/3 स्क्वायर रूट, या टेंजेंट y विल बी इक्वल टू -1/3 स्क्वायर रूट। अब टेंजेंट का भी डोमेन वही होता है जो साइन का है, y बिलोंग्स टू -π/2 π/2। वी नो दैट टेंजेंट π/6 की वैल्यू 1/3 स्क्वायर रूट होती है। अब चूंकि यहाँ पे -1/3 स्क्वायर रूट है, हमने बोथ साइड्स माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब हमें पता है कि माइनस टेंजेंट थीटा जो होता है वो टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा के इक्वल होता है, तो ये वाला माइनस जो है हम इसके अंदर लेके जा सकते हैं। टेंजेंट ऑफ -π/6 इज इक्वल टू -1/3 स्क्वायर रूट। अब इन दोनों को कंपेयर करें 1 और 2 को, तो y की वैल्यू आ जाती है y इज इक्वल टू -π/6। पहले हमने y की ये वैल्यू लेट की थी और आंसर में y की वैल्यू आएगी -π/6। दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं, ये भी y के इक्वल है और ये भी y के इक्वल है, इसलिए ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। So tan inverse of -1/square root of 3 is equal to -π/6. Now we solve part number 9 of question number 1. Sin inverse of -1/2 square root. Y is equal to sin inverse -1/2 square root. ये हमने लेट कर लिया, इसकी वैल्यू y के को लेट कर ली। यहाँ से sin y is equal to -1/2 square root. y का जो डोमेन है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो भी हमने पढ़ा है, ये -π/2 से लेकर π/2 तक क्लोज्ड इंटरवल होता है। वी नो दैट अब ये साइन π/4 या साइन 45 डिग्री जो होता है, ये 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। अब यहाँ पे चूंकि माइनस है, तो माइनस से बोथ साइड्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम जानते हैं कि टेंजेंट की तरह साइन में भी अगर माइनस शुरू में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो एंगल के साथ आ जाता है। माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा, इसलिए ये जो साइन के शुरू में माइनस था ये हमने एंगल के साथ लिख दिया। साइन ऑफ -π/4 इज इक्वल टू -1/2 स्क्वायर रूट। तो ये हमने साइन y इज इक्वल टू लिया हुआ है। 1 और 2 को आप कंपेयर करें तो y की वैल्यू आ जाती है -π/4। तो y हमने लेट किया था इसके इक्वल और y का ये आंसर आया, ये भी y के इक्वल है और ये भी y के इक्वल है, इसलिए ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। साइन इनवर्स ऑफ -1/2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -π/4। Now we solve example number 4 on page number 396. Show that cos inverse 12/13 is equal to sin inverse 5/13. तो लेफ्ट हैंड साइड से cos इनवर्स 12/13 को हम लेट कर लेते हैं अल्फा के इक्वल। यहां से cos अल्फा विल बी इक्वल टू 12/13। तो ये साइन इनवर्स है, तो साइन लाने के लिए cos हम ये फार्मूला यूज करते हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। तो sin स्क्वायर अल्फा विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो sin अल्फा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। अब इसमें cos अल्फा की वैल्यू 12/13 हमने पुट कर दी, इसका स्क्वायर ले लिया, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, 169 एलसीएम आ गया, तो ये ऊपर आ गया 169 माइनस 144 जो कि 25 के इक्वल होता है। 25 और 169 इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये प्लस माइनस 5 और 13 आ गया। अब चूंकि ये अल्फा जो है पॉजिटिव है, cos अल्फा इज पॉजिटिव, और इसका डोमेन जो होता है वो होता है 0 से पाई तक, इन विच साइन इज पॉजिटिव। 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर 0 से पाई तक पहला और दूसरा क्वाड्रेंट बनता है, इसमें ये साइन जो होता है ना ये पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हम ये यहाँ पे यूज करेंगे। दो चीजों से हमें पता चलता है कि साइन क्यों पॉजिटिव है, कि cos अल्फा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि ये पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड में नहीं। तो सेकंड में जो है cos नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव है, इसका ये मतलब है कि साइन अल्फा ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हम साइन अल्फा की वैल्यू 5 और 13 लेते हैं, यहाँ से अल्फा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 5 और 13। तो ये भी हमने अल्फा लिया हुआ है और ये भी अल्फा के इक्वल आ गया, दोनों को इक्वल लिख दें, तो यही हमने प्रूव करना था। cos इनवर्स 12 और 13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5 और 13। Now we solve part number 2 of question number 2. 2 cos inverse 4/5 is equal to sin inverse 24/25. अब इसमें हमने ये 2 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको लेट कर लेना है अल्फा के इक्वल। तो cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू अल्फा,
यहां से cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4/5। अब साइन 2 अल्फा, ये साइन इधर जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, ये हमने अल्फा लिया है तो साइन 2 अल्फा का फार्मूला हम लिखते हैं। साइन 2 अल्फा होता है 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इसमें कॉस अल्फा की वैल्यू तो हमें पता है, साइन अल्फा की जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इसका स्क्वायर रूट इंटू ये कॉस अल्फा, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर अल्फा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन अल्फा लाने के लिए इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो साइन अल्फा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू ये कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा की वैल्यू है 4/5। तो राइट हैंड साइड में हम कॉस अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा है तो ये बन जाएगा 4/5 का स्क्वायर इंटू ये कॉस अल्फा है तो ये बन जाएगा 4/5। 4/5 का स्केयर लिया तो ये आ गया 16/25। एलसीएम ले लिया 25, ऊपर आ जाएगा 25 माइनस 16 जो कि 9 के इक्वल होता है, तो 9/25। इसका स्केयर रूट ले लिया तो ये बन गया 3/5। इसको सिंप्लीफाई किया 24/25। तो साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 24/25 या 2 अल्फा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। इसमें आप अल्फा की ये वैल्यू पुट कर दें, अल्फा इज इक्वल टू cos inverse 4/5, so 2 into cos inverse 4/5 is equal to sin inverse 24/25. Now we solve question number 3, part number 1. Find the value of each expression. Cos of sin inverse 1/2 square root. Let y is equal to sin inverse 1/2 square root या sin y is equal to 1/2 square root. ये इसका डोमेन होता है, ये जब इनवर्स आएगा तो ये हमने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ही इसका लेना है, y बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। तो साइन π/4 ये 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, दोनों को कंपेयर किया तो y की वैल्यू आ गई π/4। सो साइन इनवर्स 1/2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू π/4। अब इसमें ये ब्रैकेट के अंदर हमने cos ऑफ साइन इनवर्स 1/2 स्क्वायर रूट, इसकी जगह पे हमने π/4 लिख दिया, तो cos π/4 होता है 1/2 स्क्वायर रूट, तो इस सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 1/2 स्क्वायर रूट। अब ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, इसमें पहला क्वेश्चन है उसका पार्ट नंबर 1, प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल स्मॉल r रेशो कैपिटल R रेशो r1 इज इक्वल टू 1/2/3। ये हमने जो किया था उसमें वो थोड़ा सा इससे ज्यादा था, ये इसका एक पार्ट ही है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2, प्रूव दैट r1 प्लस r2 इंटू टेंजेंट गामा ओवर 2 इज इक्वल टू c। क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट यूजिंग टेबल या कैलकुलेटर शो दैट tan inverse 5/12 is equal to sin inverse 5/13. Similarly, part number 2, find the value of secant of sin inverse -1/2। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। दिस इज एंड